Uh, so as today we are completing our 7 years, so currently we are launching our new product into market. It's Legacies. So we have know that everyone is investing into market or investing into they have their own assets. So currently market facing some usually very like we can say more issue into market. So that there are around like 50,000 crore plus money is into market that unsettled. So Legacies came across there. We got that problem. So we are solving, or we can say that we are resolving this issue. So that's why we are launching our product Legacies. So more about that, like Suresh can also add some points in it. Yeah. So basically, as Ganesh sir mentioned, about 50,000 crore money is unsettled in the market. Some is in term insurances, some is in stock. So we had our own research team. So our research team did a research on that issue. So according to that, we came up with a solution. Firstly, we launched the same app with the name Beyond Life. But then we got to know, we changed it, we rebranded it, and then we launched it as Legacies. So as today we are completing 7 years, we are launching the Legacies. So the main part our app will cover is like many people's like some of you also have invested in markets, but you have not added your nominee to your stocks or mutual funds. Like many of us do that. So main part in our app is basically we do the KYC verification of an holder or user, and then we tend to like we have done a compulsion to add a nominee to it. So when we add a nominee to it, we do KYC every 3 months. A user is required to do KYC every 3 months. It is compulsion. So when a user does KYC every 3 months, it is okay, no issue. But if the user doesn't do KYC in 3 months, our follow-up team will call him to know if he's alive or if he's good. So if he's good, KYC is done, no issues. But if he doesn't pick up the call, okay, we'll let that happen. In some 2 days or what, we call him again. And then if the user picks up the call, good, no issues. But if we got to know some uncertain events like his death has happened or some uncertain event, so in that case, we will call his nominee. Directly, we'll call his nominee, and we will talk to them like what happened to the user. He registered his all assets in our app, and the KYC was scheduled, but he was not able to complete the KYC. So at that time, if the nominee says that some uncertain events has happened to the user, then at that time we will visit the nominee. Then we'll pass on all the details that the user has stored, like term insurances, stocks, etc. So all these things will be handed over to nominee. That's basically what our app is doing. We will also be adding some new features to it as the launch is progressing. So moreover, her server tool. So basically, we all know that passing away of our one of our beloved, family member is always we don't like it. So what happens when a family member passes away? We are in such a shock that we don't know what to do. At the same time, if there is a person or a app or someone to support you, pass on their legacy to you all, to their family members, it is always good to have that kind of person. So legacist is basically that person that we will assist you after of a certain family member to pass on their legacy to other family members. So yes, we are today launching that product of ours, and we will be adding new features as Suyash said. And once as he explained the entire process, yes, it is very crucial for the person who is using Legacyst app to complete their KYC every 3 months. That makes us sure that the person is doing well. But if that person doesn't do their KYC in three every 3 months, we will try to get in touch with them in our first attempt. If he doesn't answer, maybe due to some other reasons, then we will try to connect with them for the second time. If he doesn't answer, if he or she doesn't answer for the second time, then we will try to connect with the nominee. And yes, if the person is was unable to attend the call, well and good, we will do their KYC. But in
uncertain events, if any uncertain events has happened, then yes, we will get in touch with the nominee, ask them for a suitable time where a representative from our company will go to their place and basically assist them, help them in their grieving time, that how to proceed further and how the person who have passed away, their legacy will pass on. Okay, that is the complete idea of legacist. So Basically, we are focusing on a tagline, ensuring your legacy lives on. Lives on. So, any questions to have? So it's only for death or any accidental insurance? Everything. all kinds of insurance we will cover up. Stocks, mutual funds, insurances. Any assets that Any you assets carry, you have. we will support you on that basis. Even if you have Whatever one asset, assets you have, whatever policies you have, you just have to mention it on our app, Platform. and yes, we will pass it on to your family How to members. collaborate the insurance company with you guys? So we are tying How up. many insurance companies? We have already done with them. Even we have we have tied up with different companies. Even we can say that Andrati. Yes. Even we can say that like All Reliance. major So we are insurance into tie-up companies with them. we are tying up one by one, and yes, we are working on other assets as well, like real estate or something like that. So whatever things individual wants to pass on, we will cover that in our platform. Is there any charges for this application? yeah. So currently, we will be awarding 1 year free membership to all the users, and then after that, we can assign charges. But the charges will be nominal, like more over 600 rupees or yeah, that for a year. The charges will be very nominal. आपने यहाँ पे मेंशन किया है कि फार्म जो कंपनी है उसमें भी आप प्रोवाइड करने वाले सर्विस, तो उसमें किस तरह से आप करने वाले हैं? फार्मा कंपनी. हाँ जी, ओके, फार्मा कंपनी में हम कैसे प्रोवाइड करने वाले सर्विसेज? बेसिकली आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन, लाइक व्हाट? यहाँ पे आपने मेंशन किया हुआ है कि टेक्निकल सेक्टर में भी आप फार्मा एंड इवेंट्स में भी विभिन्न क्षेत्रों में जाना Okay. तो इसके बारे में वो सैटमैट के बारे में था कि सैटमैट we have not only technology, we have another product like सैटमैट इवेंट, सैटमैट फार्मा. तो वहाँ पे हमारे खुद के प्रोडक्ट्स है, जैसे कि आप बोल सकते हो किसी का टैबलेट्स रहेंगे, वैसे हमारे खुद के प्रोडक्ट्स है जो अवेलेबल है मार्केट में, और हमारे उसके लिए डेडिकेटेड दूसरी टीम है जो उस पर काम करती है. वी आर आवर ओन प्रोडक्शन हाउस. तो वहाँ पे वो सारा रिसर्च वगैरह करके हम लोग मार्केट में प्रोडक्ट अभी लॉन्च कर चुके हैं. We have a one hood that's called Satmat Group, and under that we have Satmat Pharma, Satmat Events, and Satmat Technologies. So today we are launching the product under Satmat Technologies. आपका पहला नाम बियॉन्ड लाइफ था, आपने क्यों चेंज किया? Beyond Life. सो अभी जैसे कि पकड़ लो कि रीब्रांडिंग करनी थी, तो बेसिकली हमने बहुत सारे आइडिया सोचे. तो मेन आइडिया क्या थी, जैसे कि पकड़ लो कि लेगेसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि एसेट जो भी होता है वो नॉर्मल एसेट नहीं रहता, वो तो लेगेसी रहती है. जैसे कि पकड़ लो कि आप गांव में ही जाता है तो उसके पास एक आदमी के पास जमीन रहती है 10 एकड़ 15 एकड़ जितनी भी रहेगी उसके पास, तो उसकी वो खुद की लेगेसी रहती है. तो लेगेसी उसकी जब वो आदमी पास आउट होता है, फिर एवी नहीं इवेंट होता है कुछ उसके साथ, तो फिर वो लेगेसी जो उसकी है उसकी पास ऑन होती है उसके बच्चों के लिए, फिर उसके लिए. फिर वो प्रॉब्लम था यहाँ पे कि अगर आदमी कोई इन फ्यूचर अगर उसके साथ कोई डेथ वगैरह होती है तो उसके बच्चों को या फिर उसके फैमिली मेंबर्स को पता नहीं रहता कि उसके एसेट्स कहाँ पे और किस जगह पे उसने इन्वेस्ट किया है. इवन वो इतनी लेंदी प्रोसेस है कि अगर पकड़ लो कि आपने म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट किया है, तो म्यूचुअल फंड वाले पे कहाँ पे रहता है कि उनके बहुत सारे जगह पे इन्वेस्टमेंट रहती है. तो इन केस अगर इन पर्सन कोई तो पास आउट हुआ है तो उसको हर कंपनी में जाके एप्लीकेशन डालना पड़ता है कि ये सर थे, पकड़ लो कि इनका नाम था और इनका यहाँ पे एज अ म्यूचुअल फंड था और हमें यहाँ से हमारे एसेट्स वापस चाहिए. तो इतना लेंदी प्रोसेस है कि पकड़ लो कि उस एक प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए अराउंड 6 मंथ चले जाते हैं. इसलिए मैंने बोला कि अराउंड इंडिया में करंटली 50,000 करोड़ से भी ज्यादा मनी जो है फिर एसेट जो है वो अनसेटल्ड है. तो यहाँ पे वो सबसे बड़ा दिक्कत है मार्केट में, क्योंकि लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे. तो वहां पे हम लोग है कि हम लोग आपको असिस्ट करेंगे कि आपकी लेगेसी आपके फैमिली मेंबर को ट्रांसफर हो जाएगी. हर एक इंश्योरेंस का अपने एजेंट होते हैं, तो वही सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आप अलग कैसे कर देंगे? सब पकड़ लो कि अभी मार्केट में जैसे आपने बोला कि बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह वो खाली एक ही चीज करते हैं. वो क्या करते हैं, खाली इंश्योरेंस बेचते हैं. बाकी उनको कुछ जैसे कि अगर
आसान भाषा में बोला जाए तो उनको ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। उनको खाली उनके पैसे से मतलब है कि मैंने पॉलिसी बेच दी, उससे मुझे पैसे आ जाएंगे, बस उतना ही उनका है। तो अगर, इसलिए तो मैंने कहा कि अराउंड 50,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा अगर मार्केट में है तो वो प्रॉब्लम है। आप ही सोचिए, आपने एक बार पॉलिसी कर दिया तो वो हर 3 महीने में कॉल करेंगे कि आप नहीं जिंदा करेंगे। है? नहीं करेंगे। बट 3 महीने ही क्यों? 3 महीने के बाद वापस केवाईसी वेरिफिकेशन आप कर रहे हो, हर 3 महीने हर क्यों 3 महीने ही क्यों? क्योंकि बाकी तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसा नहीं करे। यस मैम, बट अगर आपको कंटिन्यूसली किसी Call का कॉल करेंगे। आए तो आप एट सर्टन पॉइंट फ्रस्ट्रेट होके आप यही बोलोगे कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। बट आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, अगर एवरी 3 मंथ्स आपको सिर्फ केवाईसी के लिए ही कॉल आया है, जस्ट टू नो दैट यू आर वेल, तो आप वो कॉल अटेंड करके बोलोगे हाँ कि ठीक है। तो वो बस फ्रस्ट्रेशन पार्ट जो है वो हमको नहीं चाहिए था, कि हम लोग कस्टमर को फ्रस्ट्रेट ना करें एवरी 3 मंथ्स, इसलिए क्योंकि ना यार देयर आर 4 क्वार्टर्स, एवरी 3 मंथ्स आपका मतलब सिर्फ हालचाल पूछने के लिए और केवाईसी करने के लिए हम लोग आपको कॉल करेंगे। तो केवाईसी भी ऐसी कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, जहाँ पे 2 क्लिक करने का खाली आपको वहाँ पे आपका आधार नंबर रहेगा, वो डालना, क्लिक करोगे केवाईसी हो जाएगी। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है क्या कि अगर कुछ इशू होता भी है तो हम कोई एक्सपायर होता है तो जो नॉमिनी है वो खुद आपको कॉल करेंगे ना बेनिफिट्स के लिए? हाँ। तो आपका क्या मतलब होता है कि आप 3 महीने में बार बार वेरिफिकेशन करते हो? अगर उनको बेनिफिट लेना तो वो खुद आपको काउंट करेंगे ही ना। तो वो कंसर्न हम लोग उनसे पूछेंगे ना, जैसे कि हर्षद ने पहले भी बोला कि अगर इन पर्सन की उसको नहीं चाहिए, फिर कुछ वो कहाँ पे अलग है, पकड़ लो कि वो यूएस ये में भी बैठा है। चीज सर गलत है ना कि आप 3 महीने में कॉल करते हो और पूछते हो कि आप जिंदा हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं, हम लोग KYC जिंदा ये नहीं पूछेंगे, हम लोग पूछेंगे केवाईसी के लिए, KYC अपडेशन के लिए। KYC नहीं। इनडायरेक्टली वही हुआ ना कि आप पूछते हो कि केवाईसी करना है सर, आप ही हो क्या? मैम एक पर्सनल टच भी कस्टमर्स के। इट्स सेल्फ वेरिफिकेशन मैम। हमारे ऐप का मोटो क्या है कि आप समझिए, आपने हमारे ऐप पर रजिस्टर कर दिया, आपके घर वालों को आपके एसेट्स के बारे में कुछ पता नहीं है या आपको कुछ बताना नहीं है। ऐसे बहुत लोग होंगे कि घर पे बताते नहीं। हमारा मोटो क्या है कि अगर इन सर्टन अनसर्टन इवेंट्स में अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो आपके घर वालों को कहीं भटकना ना पड़े, जो आपकी लेगेसी वो उनके पास फॉरवर्ड हो जाए। ये हमारा मोटो है, इसलिए हम 3 मंथ्स में सेल्फ वेरिफिकेशन ले रहे हैं कि आदमी है। ऑन द ऐप भी सेल्फ वेरिफिकेशन है केवाईसी। अगर वो नहीं होता है विद इन 3 मंथ्स, जस्ट विद ऑन अ फिंगर क्लिक, अगर वो नहीं होता है देन ओनली वी विल गेट इन टच। और क्या फायदे हैं? क्योंकि आप ही का क्यों लेंगे ना, मैम मार्केट में कोई कोई चूज करेंगे, क्यों चूज करेंगे? मार्केट में भी कोई है ना? मेरा एक पर्सनल आपको मैं एक सिनारियो बताता हूँ कि विद सर्टन मतलब कंपनी, मेरे फादर का इंश्योरेंस था, व्हेन ही पास्ड अवे उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, बट बेसिकली मेरे को एक 5-6 बार ऑफिस जाके उनके वो डॉक्यूमेंट्स, प्लस उसको क्लेम करने के लिए मेरे को और 6 महीना लगा, क्योंकि हमको मालूम नहीं है ये ऑफिस से वो ऑफिस जाओ, वो ऑफिस से तीसरे ऑफिस जाओ, फिर हेड ऑफिस जाओ मेन चीज के लिए। तो बेसिकली जो हैसल है हमने वो फिगर आउट किया है कि हमको जो हम पे बीती है या मुझ पे बीती है वो हमको पास वो किसी के साथ ना हो, कि वी हैव बीन थ्रू दैट। तो बेसिकली वो हैसल, वो फ्रस्ट्रेशन, कि हम लोग तो एक डिफरेंट माइंडसेट में होते हैं वो सिचुएशन में, उसके बाद भी 1 साल तक हमको वो कवर अप करने के लिए, मतलब स्टेबल होने के लिए 1 साल कम से कम तो भी लगता है, और उसके बीच में इतनी सारी चीजें। बट हमारा जो जो मेन पेन पॉइंट है, बस हमको वो सॉल्व करना था कि आपको हैसल फ्री आपकी चीजें मिल जाए, वो हमारा मेन कंसर्न है। और इसी के लिए हम लोग ने ये लेगेसिस्ट ऐप ये लॉन्च किया। आपको ऑफिस ऑफिस है जो कस्टमर की डायरेक्ट ऑफिस Yes. आते यस सर, हमारे मल्टीपल ऑफिसेज है, विमान नगर में भी ऑफिस है और कल्याणी नगर में भी ऑफिस है। और हर ऑफिस का अलग अलग है, जैसे कि हमने बोला कि अंडर अ रूफ ऑफ सटमेट वी हैव डिफरेंट ग्रुप्स, तो हर ग्रुप का अपना अलग ऑफिस है, अलग वहाँ पे लोग काम करते हैं, अलग रिसर्चर्स वहाँ पे है जो इस चीज पे काम करते हैं। सर सेटमेट ग्रुप के बारे में कुछ बताइए। सैटमेट ग्रुप हम लोग वी आर इनटू यू नो मल्टीपल बिजनेसेस। एक है सैटमेट फार्मा वेर वी यू नो वर्क इनटू फार्मास्यूटिकल सेक्टर। वन इज सैटमेट इवेंट्स। बेसिकली मुंबई और पुणे में जो हनी सिंह के शोज हुए थे वो सैटमेट इवेंट्स नहीं करे थे, और वी हैव सम यू नो इवेंट्स नेक्स्ट ईयर इन पाइपलाइन एज वेल। तीसरा जो ग्रुप है दैट इज सैटमेट टेक्नोलॉजीज। तो अंडर दैट हम लोग बेसिकली फिनटेक में थे, फिनटेक में ही हैं, और वी वेर यू नो
fintech company serving others. But now we are moving towards into product development. So this is there are multiple products which we will be launching very soon. Legacyst is our first app which we are launching today. सेटमैट ग्रुप से कितने लोग जुड़े हैं? 700 लोग लगभग कुछ। हाँ, मतलब एक मतलब जैसे हमारी टेक्निकल टर्म में भाषा मतलब हम लोग सेग्रीगेट करते हैं, तो वी आर अ कंपनी ऑफ 51 to 200 एम्प्लॉइज। सो बेसिकली सेटमैट 2017 में स्टार्ट हुआ था। सेटमैट इनिशियली सेटमैट टेक्नोलॉजीज से स्टार्ट हुआ था। हम लोग एक ही सेगमेंट में काम कर रहे थे, इसमें लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे थे। सो आवर मेन मोटो वाज टू सपोर्ट स्टार्टअप्स। जो स्टार्टअप्स है, बड़ी बड़ी कंपनीज है जितनी भी, उनकी कॉस्टिंग काफी हायर होती है। हमारा जो मोटो था, बेसिकली हम लोग एक ही सेगमेंट में काम कर रहे थे, वो स्टार्टअप्स। मार्केट में कोई भी है, जैसे कोई भी प्लेटफॉर्म बनाना, जैसे कि ई कॉमर्स बनाना है, एनी आइडिया ही है, जिसके पास जो भी आइडिया है, तो हम लोग स्टार्टअप्स को सर्विस प्रोवाइड करने में 2017 से शुरुआत की थी। साथ ही में उसके बाद हमने फिर बैंक के साथ टाई अप किया। आईसीआईसीआई बैंक के साथ हमारा टाई अप हुआ एपीआईज इंटीग्रेशन के लिए। फिर उसके बाद हमने येस बैंक के साथ काम किया। फिर काफी मल्टीपल बैंक्स के साथ हम लोग फिनटेक प्रोडक्ट्स में आ गए। तो फिनटेक मतलब आजकल तो सारे लोग रिचार्ज मोबाइल एप्लीकेशन से कर ले रहे, जैसे फोन पे हो गया, गूगल पे। बट आज से 5 साल 7 पहले जब यूपीआई नहीं था, तब ये चीजें होती थी रिटेल से, शॉप टू शॉप जाके करते थे। तो शॉप में हमारा वो एप्लीकेशन तब चलता था, वही सेगमेंट में हम लोग काम करते थे। इसमें जैसे कि अभी किसी ने पूछा था कि सेटमैट से कितने लोग जुड़े हुए हैं, तो मोर देन 50 लाख रिटेलर्स आज भी हमारे सॉफ्टवेयर के अंडर मार्केट में काम कर रहे हैं पॉइंट ऑफ सेल पे। अभी उन्होंने सर्विसेज एड ऑन कर लिए, जैसे पहले रिचार्ज होता था, अभी आजकल एईपीएस चलता है। आधार से कैश विड्रॉल आप उसमें कर सकते हो, पैन कार्ड एप्लीकेशन है, टेक्नोलॉजीज में इसमें हमारे लगभग 50 लाख लोग जुड़े हुए हैं जो रिटेल काउंटर पे काम कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। देन लास्ट ईयर हमने सेटमैट फार्मा स्टार्ट किया, जिसमें जेनरिक मेडिसिन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। पुणे एंड मुंबई हमारा बेसिक मार्केट है, जहाँ पे हमारी ये मेडिसिन वर्किंग है। मोटो यही है, बाकी मेडिसिन और हमारा जो है वी वर्क कमीशन लेस, जिसमें कमीशन से और जेनरिक मेडिसिन में हम लोग काम करते हैं। आफ्टर दैट वी कम टुवर्ड सेटमैट इवेंट्स, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में हमने काम किया। ठीक है, अभी आजकल म्यूजिक कॉन्सर्ट्स एवरीवन रिक्वायर्स एंटरटेनमेंट, सब लोग बोर हो रहे हैं, आईटी में काम कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड लोगों को कॉमेडी शोज और एंटरटेनमेंट चाहिए। तो वही बढ़ती डिमांड के हिसाब से हमने इवेंट्स में लॉन्च किया। एंड अभी हम लोग फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा लॉन्च कर रहे हैं जो है लेगेसिस्ट। सो लेगेसिस्ट का मोटो यही है कि हम चाहते हैं कि जो अनक्लेम्ड अमाउंट्स है, काफी बड़े बड़े अमाउंट्स है, एलआईसी के पास हो गया है, कोई भी टर्म इंश्योरेंस के पास हो गया, या फिर आप बैंक अकाउंट की बात करो, या स्टॉक की बात करो, या म्यूचुअल फंड में, हर जगह पर नॉर्मली होता क्या है, काफी सारे लोग हैं जो रूरल एरिया से आ रहे, सिटी में वर्क कर रहे हैं। अभी जनरेशन को पता है, जनरेशन इज अपग्रेडिंग, उन्हें पता चल रहा है कि म्यूचुअल फंड्स क्या है, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, दे आर गेटिंग देयर सैलरीज, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। बट एट द रिजल्ट ये चीज हो रही है कि उस चीज की आज कोई श्योरिटी नहीं है कि जितने इन्वेस्टमेंट्स है वो फैमिली पास तक पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंचेंगे। बहुत सारे अन्य चीजें लोग हैं, जैसे कि किसी की बात करें, लड़का आया है पुणे में जॉब कर रहा है, उसकी फैमिली दे रही है एनी सिटी में, रूरल में, उन्हें पता ही नहीं है स्टॉक मार्केट क्या होता है, उनको पता ही नहीं कि अप स्टॉक में होता है या ग्रो में इन्वेस्टमेंट होता है। अगर उसको बाई चांस कुछ डेथ हो जाता है तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि वो चीजें उनकी फैमिली तक पहुंचेगी, तो उसकी गारंटी हम लोग लेते हैं। एज ऑफ नाउ फ्री एप्लीकेशन हमने लॉन्च किया है। नेक्स्ट ईयर से रिन्यूएबल चार्जेस है, 600 रुपए पर साल के चार्जेस है, मतलब 1.5 रुपए आपका दिन का आता है। अफोर्डेबल है, हर छोटा सा छोटा व्यक्ति इसे अफोर्ड कर सकता है और सारी एसेट रख सकता है, जैसे स्टॉक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, बैंक अकाउंट्स हो गए, आपकी एलआईसी हो गई, गाड़ी हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। और इसके बाद हमने इसमें विल भी लिखने का ऑप्शन दिया है। जो लोग अपनी विल लिखना चाहते हैं कि मैं अगर बाई चांस नहीं रहा तो मेरे बाद क्या होगा, तो वो भी आप इसमें नोट डाउन कर सकते हो। बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि उधारी वाले ट्रांजेक्शन होते हैं। फैमिली को इंसान नहीं बताता है कि मैं किससे क्या अमाउंट दे रहा हूँ, किसके साथ मेरा क्या व्यवहार चल रहा है, तो वो चीजें भी आप इसमें नोट डाउन कर सकते हो। बाई चांस अगर आपको कुछ हो गया तो वो डिटेल्स आपके फैमिली को मिलेगी। इस चीज की हम लोग 100% गारंटी लेते हैं। केवाईसी जो हमारा 3 महीने, वो सेल्फ केवाईसी, 3 महीने में आपको कॉल नहीं आने वाला है कि आप जिंदा हो, बिल्कुल नहीं। आपको ऐप में नोटिफिकेशन दिखेगा, आपको केवाईसी करना है कि यस, जस्ट आपको ओटीपी डालना है, दिस इज अ हैप्पी केवाईसी, केवाईसी का नाम हैप्पी केवाईसी, जस्ट यू आर हैप्पी, दैट्स इट। अगर आपने केवाईसी नहीं किया तो ही आपको कॉल आने वाला है कि सर आपका केवाईसी ड्यू है। हम उसे नहीं पूछेंगे सर आप जिंदा हो, बिल्कुल नहीं, सर आपका केवाईसी ड्यू है, आपका हैप्पी केवाईसी नहीं हुआ है, तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। यही हमारा मोटिव होने वाला। जब हमें 3 महीने में रिस्पॉन्स नहीं आता है, हमारी कंपनी ने सोचा कि साल भर अगर 6 महीने का, तो ज्यादा ड्यूरेशन हो जाता है लाइफ स्पैन के बारे में, तो 3 महीने में अपडेट लेना इज अ गुड थिंग। हमारी बैकएंड और रिसर्च टीम का ये अंदाजा है कि
3 महीने में वेरिफिकेशन करना चाहिए, एवरी 3 महीने का हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड्स रख के करते हैं। और इंश्योरेंस हमारे सारे टाई अप्स, यस सर स्मार्ट ग्रुप में ऐसा क्या, ऐप तो बहुत सारे होते हैं, हाँ जी। स्मार्ट ग्रुप में क्या ऐसा चीज है कि जो लोग उसको लेके, देखो ये एप्लीकेशन जो ये लेगेसिस्ट है, ये सैटमैट का एक प्रोडक्ट है, ये फर्स्ट एप्लीकेशन है, आज तक ऐसी मार्केट में कोई चीज है ही नहीं। आजकल है अगर जो बड़े बड़े लोग से उन्होंने क्या किया ना, इंडिविजुअली एडवोकेट्स हायर करके रखे हो खुद के, कि हमारी एसेट ये, अगर हमें कुछ होता है तो ये हमारे बंटवारे होंगे, ये हमारी बिल है, उन्होंने एडवोकेट्स कर चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आई बेट कि आज तक किसी ने, मतलब किसी के पास कोई गारंटी नहीं, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली के पास आपके एसेट जाने वाली की नहीं, 100%। और जब किसी की डेथ हो जाती है, मेन मोटो हमारा ये कि हमारी लीगल टीम उस पर काम करती है, उनके लिए सारी सेटलमेंट करेगी। अब आप बताइए किसी के घर में अगर डेथ हो रहा है, क्या वो पर्सन कैपेबल है कि खुद जाए और ऑफिस के चक्कर लगाए कि ये डॉक्यूमेंट था सर, यहाँ पे मेरे स्टॉक मार्केट में इतनी इन्वेस्टमेंट थी, मैं इसको कैसे गेन करूं, तो वो उस मेंटल स्टेबिलिटी में नहीं है तब। तो उसे हम सपोर्ट करते होते कि आप दुख में हो तो आप उससे रिकवर करिए, आप घर पे आराम करिए, हमारी टीम आपके लिए काम करेगी, आपको कहीं ऑफिस में धक्के खाने की जरूरत नहीं है। सर आपकी नेचुरल डेथ होती तो उसको मिलता है, उसका पास एक्सीडेंट डेथ हुई तो उसको मिलता है, जो नेचुरल डेथ, हार्ट अटैक हुआ, कैंसर हुआ, तो उसके लिए आपकी कंपनी क्या करेगी? डेफिनेटली देखो, टर्म्स एंड पॉलिसीज जो है वो तो सबके लिए है। हेल्थ इंश्योरेंस ने जो बोला है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ड्रिंक एंड ड्राइव में अगर किसी की डेथ हो जाती है, उसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वो अलाउड ही नहीं है, सिंपल सी बात है। इंश्योरेंस पॉलिसीज को हम लोग ऑबे करते हुए, जहां पे आप सही हो वहीं पे हम लोग आपके साथ चले, अगर कोई डिफॉल्ट है तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जैसे आपने बोला कि एक्सीडेंटल अगर उसका हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होगा तो ही उसे बेनिफिट मिलेगा, अगर नहीं है कवर तो सिंपल सी बात है नहीं मिलेगा। वो चीज हम लोग प्रमोट भी नहीं करते, हमें जेन्युइन चीजें करनी है। मतलब डेटा आने वाला है जी, साइबर सिक्योरिटी किसी चीज की है? यस, डेटा हमने सारा सिक्योर रखा गया है, काफी सारे हमने आईटी एक्ट को हम लोग फॉलो करते हैं। इवन हमारा सेबी का रजिस्ट्रेशन अभी पाइपलाइन में है, हम लोग ये सारा डेटा सेबी को भी दे रहे हैं विद द परमिशंस ऑफ ऑल गवर्नमेंट रिकॉर्ड। एक रिसर्च एनालिटिक्स का हमारे पास लाइसेंस है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारा डेटा स्टोर कर रहे हैं। हमारी प्राइवेसी पॉलिसी बोलती है कि हम लोग डेटा किसी को शेयर नहीं करते, एवरीथिंग इज सेफली सिक्योर्ड विद अस। वो डेटा सिक्योर के लिए कोई कंसर्न वगैरह साइन करेंगे क्या? यस, हमारा एक सेल्फ एग्रीमेंट होता है, जब भी आप साइन अप करते हैं तो डेटा आपका 100% हमारा सिक्योर होता है, ये एश्योरिटी हम लोग आपको देते हैं। और कंपनी और जो कोई ले रहा है उनका कंसर्न कुछ एग्रीमेंट हो जाता है? यस, डिजिटल एग्रीमेंट होता है, जैसे आपने साइन किया, जैसे आप हर एप्लीकेशन में करते हो, एक चेक बॉक्स होता है, यू एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, उसमें सारी चीजें हैं। डेटा हम लोग रीयूज नहीं करते। कोई डिसीज भी है क्या? और जैसे आपने बताया कि ड्रिंक एंड ड्राइव एक ऑप्शन, हाँ। कोई और डिसीज भी है क्या इसमें जो नहीं ले सकते, फैसिलिटी नहीं ले सकते? देखो एग्जांपल्स काफी सारे हैं, जैसे ड्रिंक का मुझे पता है, जैसे स्मोकिंग का होता है, काफी सारे लोग इंश्योरेंस में डिक्लेयर नहीं करते कि दे स्मोक, बट एक्चुअल प्रैक्टिकल में वो स्मोक करते, तो उनका इंश्योरेंस रिजेक्ट हो जाता है वहां पर। कोई डिसीज भी ओपनली नहीं बताते हैं फिर भी लेंगे? नो, डिसीज का नहीं होता है इसमें, अगर जेन्युइन कोई नेचुरल डिसीज है तो वो कंपनीज तो सेटल करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको फ्लेक्स में देखिए, आपको वहाँ पे योर केवाईसी पेंडिंग एप्लीकेशन है यहाँ पर। वैसे कितने लोग जुड़े हैं आपसे अभी तक? जी, कितने लोग जुड़े हैं आपसे? किस चीज में? उसके बाद फिर कितने लोग आपके कस्टमर? मैंने जैसे बताया था कि 50 लाख से ज्यादा रिटेलर ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये एप्लीकेशन है, वहाँ पे आप देख सकते हो, या मैं आपको मोबाइल शेयर करूँ, दोनों चीजें पॉसिबल है। Yes. और मेरे लेफ्ट साइड आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमने आपको प्रोसेस समझाया है कि एग्जैक्टली ये यूज कैसे करना है। ये आपको रजिस्ट्रेशन करना है, नेक्स्ट स्टेप आपका टाइमली केवाईसी, आपको केवाईसी कंप्लीट करना है। इन 3 मंथ यू विल गेट अ फॉलोअप कॉल, 4 स्टेप होगा। अगर फॉलोअप कॉल आपका रिजेक्ट हो रहा है, आंसर नहीं मिल रहा है, तो वी विल ट्रेस योर नॉमिनीज, वी विल सेटल योर क्लेम्स व्हाटएवर यू हैव रजिस्टर्ड इन योर एप्लीकेशन। सर आफ्टर सेटलमेंट आपकी फीस क्या होगी? मतलब या तो 600 में आपको देने वाले हैं? Yes. तो लेने वाले हैं नहीं, 600 रुपीज ईयरली फीस है हमारा, इतना ही फीस स्ट्रक्चर है। आफ्टर सेटलमेंट जो होती है नहीं, हमारा कोई फीस नहीं है उस चीज में। दैट इज ओनली रजिस्ट्रेशन फीस इज ओनली आवर फीस। यस, वही सर्विस हम लोग ले रहे हैं।